Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, dear devotees, for coming to day 3 of our Bhagavad Saptah. Today is a very special day. What are we celebrating? Huh? Where's Janmashtami? The appearance of Lord Shri Krishna. Bolo Shri Krishna Bhagavan Ki Jai. So today we will be hearing the divine nectarian pastimes of how Shri Krishna appeared in this world. And as Maharaj mentioned yesterday, there are so many koti Brahmand, meaning unlimited universes in this material world. So in every universe, Shri Krishna is taking birth somewhere. So our desire today is that we reenact the feeling, the enthusiasm, the joy, the happiness of the Vrajavasis. Does everybody know who the Vrajavasis are? Who are the Vrajavasis? The residents of Braj. ब्रज में क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण राधे राधे. क्यों? राधे का नाम क्यों लेते हैं जब ब्रज तो कृष्ण का ही जगह है? Because Krishna is more satisfied when he hears the name of his beloved Srimati Radharani. So today we ended this kirtan with Radhe Radhe, Jai Shri Radhe. Because now we are trying to ask for the blessings and we are trying to make Shri Krishna happy. So in this way we are inviting Shri Krishna not only in this universe here, in this Sugarland city here, in this Telfair Montessori hall here, but also in each and every one of our hearts. So please listen carefully. I request you all. Yesterday we had many disturbances by the cell phones. Please consider this your warning. Yesterday Maharaj said he would take away your cell phones. Today, I will take away the cell phones. He won't get up from the chair, but I certainly will. So please put your cell phones on silent or mute and kindly listen carefully. If children are making noise and you have control of them, we have a playroom on the left. There's a playground outside. Many facilities are there. They can enjoy it nicely. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumlitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stanalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radhakanta Namostate. Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamuni Yam Pravajantamanubeta Peta Krityam Dvaipanaviraha Katurajavaha Putreti Tanmetaya Tarvo Vimedustam Sarvabhuta Sadanam Munimantasam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta. एक बार सभी मेरे साथ हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
So English translation will be like that. I'm going to speak Hindi. श्रीमद् भागवत कथा। आज हमारी कथा का ये कौन सा दिवस? तृतीय दिवस। कल की कथा में हम लोगों ने भागवत जी में कुंती जी की स्तुति को श्रवण किया। मेरी हिंदी ठीक है? ज्यादा कठिन तो नहीं? कुंती जी ने जो प्रार्थना की, पांडवों की माता कुंती जी ने इतनी सुंदर प्रार्थना की जिसके अंदर सारे वृंदावन की कथा का जो सार है वो सार भी आ गया। इतनी सुंदर। भागवत जी में सबसे पहले यदि कोई स्तुति है, प्रार्थना है, तो वो कुंती जी की है। अब मुझको जो आदेश हुआ और जो सभी की इच्छा थी उसके अनुसार हम लोग जंप कर रहे हैं। वो याद है बचपन में सांप सीढ़ी कहते थे। नीचे होता था, नीचे से सीढ़ी पकड़कर एकदम ऊपर टॉप में पहुंच जाते थे। कल हम लोगों ने प्रथम स्कंद की कथा को सुना, आज सीधा एक्सेलरेट हो गया, सीधा 10th कैंट। कृष्ण जन्म। श्री कृष्ण आज हमारी कथा के विषय है, सब्जेक्ट है। इसलिए हम लोग जो भी कथा सुनेंगे वो वृंदावन में श्री कृष्ण को समर्पित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण चंद्र। यहाँ पर आए सभी भक्तों को हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप अपना समय निकाल कर आए, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। यही वास्तव में सम्मान है। तो आपने हमारी लाज रखी, हमारा सम्मान किया। अब मेरा कर्तव्य है मैं आपको सम्मान करूं। और मैं कैसे सम्मान कर सकता हूं? यहां बैठे बैठे आपको नरिश कर सकता हूं। कैसे नरिश करते हैं? आपके बैकयार्ड में एक पौधा होता है, सूरज की किरणें उस पौधे में आती है तो उसको नरिश करती है, वो एनर्जी है। और अगर सूरज की किरणें ना मिले तो वो पौधा कैसे हो जाता है? एकदम ड्राई हो जाता है, डेड हो जाता है। ऐसे ही हम सब के अंदर भगवान का एक अंश है, परमात्मा। हम लोग जीवात्मा और हमारे सब के अंदर है परमात्मा। हमारी नरिशमेंट बस खाने पीने से नहीं होती है, ऑक्सीजन से नहीं होती है। ये तो बॉडी की नरिशमेंट है। व्हाट अबाउट सोल? सोल की नरिशमेंट ये मील, ये खाने से, पानी पीने से नहीं होती। सोल की नरिशमेंट, आत्मा की नरिशमेंट भगवान की कथा से होगी। और कोई उपाय नहीं है उस सोल को, उस आत्मा को नरिश करने का। यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इसलिए मैंने कहा कि अब मेरी बारी है आप सबको स्वागत करने का। तो देखो, श्री कृष्ण जन्म कथा को आज श्रवण करते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए। अब थोड़ा बस कितना 1.5 घंटा मेरे को अपना समय पूरा दे रहा। इधर उधर की कोई चिंता मत करो, घर में सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है। पूरा ध्यान यहाँ पर दे दो बस। देखो, यहाँ पर एडवर्टाइज हुआ कि भागवत कथा होगी। आप अपने घर से यहाँ पर किस इंटेंट से आए हैं? भागवत कथा को सुनने के लिए, राइट? यही इंटेंट है। लेकिन जब आ रहे थे या जब जाएंगे, हो सकता है रास्ते में बोले HAP पड़ रहा है तो थोड़ा सा ग्रोसरी भी ले लेते हैं। तो घर से निकले थे तो इंटेंट था भागवत कथा सुनना, लेकिन बीच में कुछ और आ गया तो वो भी ले लेते हैं। वो हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? कथा सुनना। उसी प्रकार
भगवान कहाँ रहते हैं? श्री राम जी रहते हैं साकेत धाम, नित्य धाम साकेत। श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? श्री गोलोक वृंदावन में। लेकिन भगवान फिर अपने उस धाम से यहां पर क्यों आते हैं? इनका आने का कारण क्या है? दो कारण है, प्राइम रीजन एंड सेकेंडरी रीजन, मुख्य और गौण। श्री कृष्ण ने गीता में अपने आने का कारण बताया। क्या कारण बताया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओ, देखा सब लोगों ने महाभारत देखी थी? नहीं, कुरुक्षेत्र में नहीं, टीवी में। तो उसमें क्या बताया था? यदा यदा हि धर्मस्य, ये तो सबको याद हो गया, रोज टीवी सीरियल देखते देखते। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं आके धर्म को स्थापित करता हूं, ये भगवान ने कहा। और दूसरा क्या कहा? परित्रणाय साधूनां विनाशं दुष्कृतम्, साधुओं को उपकार करने के लिए और जो असुर हैं उनको मारने के लिए मैं आता हूं। ये भगवान ने अपने मुख से इस बात को कहा है ना? किसमें कहा है? गीता में। गीता क्या है? एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है जो भगवान के मुख से गीत के रूप में निकला है। तो यदि गीत के रूप में निकला तो उसको गीत कहो, गीता क्यों कहा? अगर आप में से कोई गाएगा तो मैं कहूंगा इतना सुंदर गीत गाया, हरिप्रिया ने इतना सुंदर गीत गाया, तो गीत है ना। लेकिन कहते हैं भगवत गीता, तो सीधा सीधा क्यों नहीं कह दिया गीत? समझ आ रही बात? कभी सोचा इस बात को? ये भगवान का गीत कहना चाहिए, लेकिन गीता कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आज इसको समझ कर जाइए। गीत तो सब समझते हैं, सॉन्ग संग बाय कृष्णा। लेकिन जब उसके आगे आ एक एक्स्ट्रा लग जाता है, वो ता का मतलब होता है त्राण, परित्राण। त्राण मतलब डिलीवरेंस। एक ऐसा गीत जो भगवान ने गाया हमारे उद्धार के लिए। The song sung by Krishna for our deliverance. That is the meaning of गीता। गीत का मतलब सब समझ गए, और जब आ लग जाता है उसके आगे उसका मतलब डिलीवरेंस। इसलिए गीता जी में भगवान ने अपने आने का कारण बताया। What is the cause? मैं क्यों आता हूं यहाँ पर? आप उधर गोलोक में शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं जब इंडिया में भागवत करता हूँ ना, लोग मुझसे प्रश्न करते हैं भगवान को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? Is he not satisfied in his own family, with his own family in his abode? तो फिर उनको समझाना पड़ता है एक एग्जाम्पल से। जैसे अभी छुट्टियां आ रही है ना बच्चों की, तो सब मोस्टली लोग अपनी फैमिली के साथ हवाई घूमने जाते हैं। यस, हवाई घूमने जाते हैं। क्यों घूमने जाते हैं हवाई? क्या घर में कोई कमी है? क्या घर में सुख नहीं है कि हवाई में सुख मिलेगा? वो भी 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। क्यों ऐसा? सोच कर देखो। नहीं, वेकेशन है। वेकेशन का मतलब क्या? घर में तो सब सुख शांति है, परिवार के साथ ही रहते हैं, बड़ा आनंद है। लेकिन वेकेशन में कुछ हम एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ अलग करते हैं, जिसमें सबको, जो घर का जो बड़ा है पिता, उसको भी सुख लगता है अपने परिवार को देखकर, और परिवार को भी सुख लगता है हम कुछ एक आउट ऑफ द रेगुलर हम जा रहे हैं। बस इसी से ये समझ लो, इसी एग्जाम्पल से समझ लो, भगवान गोलोक वृंदावन अपने धाम से इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? ये भगवान का वेकेशन है, ये लेजर ट्रिप है। और किसके साथ आते हैं? अपनी ही फैमिली के साथ। अपने फैमिली मतलब इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन, वृंदावन के जितने वासी हैं उनको साथ लेकर आते हैं। क्यों? यहाँ पर आकर हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ लेजर करेंगे जो हम अपने वहां नहीं करते।
यहां पर वो एडिशनल होगा, समझ रहे हैं? हवाई में जाकर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, स्विमिंग करते हैं, XYZ। यही भगवान के आने का प्राइम रीजन, श्री कृष्ण के आने का मुख्य कारण है। और फिर असुरों को मारना है, वो तो किसी को भी भगवान अपने अवतार को भेज सकते हैं। जाओ नरसिंह जाओ, वराह आप जाइए, परशुराम जी आप जाइए, असुरों को मारकर आ जाइए। इसके लिए भगवान को स्वयं नहीं आना पड़ता। हाँ, धर्म की स्थापना करनी है तो इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, उनके द्वारा धर्म की स्थापना हो जाएगी। श्री रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य जी हैं, ऐसे बड़े बड़े आचार्य हैं। आज भी इतने बड़े बड़े आचार्य वो आकर धर्म की स्थापना कर देंगे। इसके लिए भगवान को नहीं आना पड़ता। तो इनको आने का मुख्य कारण क्या बताया? यही प्रेम रस निर्जास कोरित अस्वादन। ध्यान से समझना आज इस बात को। राग मार्ग भक्ति लोके कोरित प्रचार। समझा रहा हूं, पहली बात तो मैं समझा दी। अपने परिवार फैमिली के साथ आकर, परिकर के साथ आकर उनको सुख देना, और जब वो सुखी होते हैं, जब फैमिली सुखी होती है तो जो बड़ा होता है उसको भी सुख लगता है। तो वृंदावन के सभी वासियों को सुख लगता है, उनको देखकर श्री कृष्ण को सुख लगता है। और जब श्री कृष्ण को सुख होता है तो उनके परिवार वालों को सुख होता है। जब उनका सुख बढ़ता है तो कृष्ण का सुख बढ़ता है। जब उनका सुख बढ़ता है तो ये कंपटीशन चलता रहता है। इसलिए भगवान यहां पर आते हैं, वन रीजन। और सुन लो, बड़ी हृदय को रुलाने वाली और बड़ी मार्मिक एक कथा है। हम लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। आप सब लोग बड़े धार्मिक हैं, अपने अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, है ना? कथा सुनते हैं, भगवान का नाम करते हैं, व्रत इत्यादि भी करते हैं। ऐसे करते 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 कितने जन्म लग जाते हैं एक ऐसी स्टेज पर पहुंचने के लिए जहां पर हमारा भगवान के साथ प्रेम इस्टेब्लिश हो जाता है, प्यार जुड़ जाता है। अभी है नहीं, अभी उसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि अभी हम जानते नहीं वो है क्या, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्यों आते हैं, ये डिटेल्स हमको पता नहीं। और ये सारी डिटेल्स श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। तो इन सबको सुनकर, रोज भागवत जी की कथा को सुनकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारा संसार में बहुत से लोगों में प्रेम है, बटा हुआ है, लेकिन आप जिनके कारण ये सृष्टि हुई, जिनके कारण मैं यहाँ पर हूं, आपसे मेरा प्रेम आज तक जुड़ा नहीं है। देखो, जब प्रेम की बात करते हैं ना, तो आप सब लोगों ने मीरा जी की बात सुनी है। मीरा जी की सुना ना? मीरा जी कैसी थी? राजरानी, महल की रानी, लेकिन कभी चिंता नहीं करती, सब समय हाथ उठाकर नाचती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीरा जी गाती हैं। पति को बड़ी परेशानी, अरे अपना प्रोफाइल मेंटेन करो, स्टेटस मेंटेन करो, आप रानी हो। लेकिन मीरा जी को किसी की चिंता नहीं। क्यों? भगवान से प्रेम जुड़ गया। और जिस दिन मीरा जी का विवाह हुआ ना, पहले दिन जब पति मीरा से मिलने आए ना, मीरा जी ने कहा, देखो मैं आपको पहले दिन एक बात कह देती हूँ, बाद में नहीं कहना कि मैंने झूठ बोला। पति ने कहा, बोलो क्या कहना चाहती हूँ? ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी और से विवाह कर चुकी हूं, ये मेरा दूसरा विवाह है। सुनकर पति को तो बड़ा क्रोध आया। क्या पहले क्यों नहीं बताया? अब बताया विवाह होने के बाद। कौन है वो, बताओ तो। एकदम तलवार निकाल दी। मीरा जी ने कहा, वो है कृष्ण। अच्छा अच्छा, वो भगवान की बात है, फिर तो कोई बात नहीं। मैं तो सोचा कोई और है, दुखतम कौन सा और राजपूत है। सारे राजपूतों में तो पूत नंद का पूत कृष्ण है। तो पति शांत हो गए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी मीरा जी नहीं मानी और भगवान का नाम लेकर बस गाती फिरती है।
इसलिए उनको क्या दिया गया? मीरा जी को कोई लेमनेड, कोई शरबत, क्या दिया गया? विष दिया गया। अब इसी में एक और बात समझ लो, 3 ऐसी पर्सनालिटीज हुई हैं। आज भागवत का तीसरा दिन है ना। 3 ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने विष पिया है, उनको कुछ नहीं हुआ। एक को जबरदस्ती पिलाया गया, एक ने अपनी इच्छा से पिया, और एक को झूठ बोलकर पिलाया गया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। बताओ कौन है 3? एक ने तो अपनी इच्छा से पी लिया। ये पीछे से आवाजें आ रही हैं, बोलो हम जोर से। सब इतने पंडित विद्वान हैं यहाँ पर, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों मेरे को बिठाया यहाँ पर। सब जानते हैं लोग, ये अच्छा नहीं किया आपने लोग, सब बड़े होशियार हैं। एक बार ना एक गांव में एक साधु पहुंच गए, क्योंकि यात्रा कर रहे थे। वो तो 1 रात रुकना है, 2 रात रुक जाएंगे। तो साधु आए तो सब अच्छे से उनकी सेवा करते हैं, पकवान बनाते हैं। तो सबने सोचा साधु आए हैं, इनका लाभ उठाओ। टाउन में कोई साधु आए, लाभ उठाओ, उनका लाभ क्या है, इनसे कथा सुनते हैं। सब पहुंच गए, महाराज अब आप आए हैं तो 7 दिन भागवत करके ही जाओ। साधु ने बोला हमारा क्या, करके चले जाएंगे, हमको तो कथा ही बोलनी है। कल से कथा होगी, सब आ जाना। कहाँ जाना? मोंटेसरी में। तो रात को ना गांव में पंचायत होती है ना, सारे गांव वाले बैठ गए। बोलते देखो हम लोग बहुत बार भागवत कथा सुन चुके हैं, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन साधु जब सामने हो ना तो ऐसे रहना कुछ नहीं जानते। अगर वहां होशियारी की ना फिर साधु सोचेंगे चलो क्या सुनाना, हम चलते हैं। तो कल सब ऐसे बैठे रहना कुछ नहीं जानते। तो सबको तैयार कर दिया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, 5000 लोग, बड़ा सा स्टेज, साधु बैठ गए। बोलते गांव वालों ये बताओ आप में से कितने ऐसे हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं? तो सबको पहले से सिखा दिया था, ऐसे ही रहना पागल, कुछ विश्वास, किसने हाथ ही नहीं खड़ा किया। बोलते कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता, सब नास्तिक हैं। फिर तो लोगों को कथा क्या सुनानी, मैं जा रहा हूं। तो वो अपने कुटिया में आ गए। अब सारे गांव वाले बैठ गए, शाम को पंचायत में बोलते महाराज जी गड़बड़ हो गई बात। बोलते कल ना साधु यही प्रश्न फिर करेंगे, तो सब हाथ खड़े करना कि हम सब भगवान को मानते हैं। फिर तो साधु महाराज अच्छी सी कथा सुनाएंगे, आस्तिक है ना। अगले दिन फिर स्टेज पे आ गए महाराज। अच्छा बताओ गांव वालों कितने लोग भगवान को मानते हैं? सबने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा सभी बड़े श्रद्धालु हैं, सब मानते हैं। जब सब मानते हैं फिर कथा क्यों सुनानी, फिर कथा क्यों सुनानी, चलो मैं जा रहा हूं अपने घर। सब सोचने लगे गड़बड़ है, नहीं मानो तो नहीं सुनाएंगे, मानो तो नहीं सुनाएंगे। पंचायत ने कह दिया कल ना आधे लोग हाथ खड़े करना कि हम मानते हैं, आधे हाथ खड़े करना नहीं मान। अब तो महाराज फंस गए। तो कल थर्ड डे यही हुआ, साधु बैठे, कितने लोग भगवान को मानते हैं? दे वर प्रिपेयर्ड, आधे लोगों ने हाथ किया। कितने लोग नहीं मानते? आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया। बोलते ठीक है, जो मानते हैं वो नहीं मानने वालों को कथा सुनाओ, जो मानते हैं उनको कथा सुनाओ, जो नहीं मानते मेरा यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि उसको कथा आती नहीं थी उसको कथा आती नहीं थी। है ये तो एक मजाक की बात है। भगवान का 3 लोगों ने विष पिया। अभी सब लोगों ने कहा शिव जी ने अपनी इच्छा से विष पान किया और विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, और नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? सब जानते हैं, बोलो नीलकंठ महादेव की। अच्छा एक ऐसे जिनको जबरदस्ती विष पिलाया गया, वो हुए प्रहलाद जी। उनके पिता ने जबरदस्ती विष पिलाया। शिव जी को कुछ हुआ? प्रहलाद जी को कुछ हुआ? कहीं नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है।
सतयुग की बातें हैं। मीरा जी तो 400 साल पुरानी बात है, कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है। मीरा जी को तो झूठ मूठ कर विष पिलाया गया। मीरा जी का भी कुछ बिगड़ा नहीं। और हम आप एक बूंद साइनाइड पी लें तो ये नहीं कह सकते इस वेरी स्वीट लाइक स्वीट राइस। कोई बता सकता है क्यों? इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन ये है कि ये तीनों भगवान का नाम करते हैं। मीरा जी भगवान का नाम करके नाचती हैं। शिव रुद्राक्ष की माला पर भगवान का नाम जप करते हैं। और शिव का ऐसा एक नृत्य है जो पूरे वर्ल्ड फेमस है। क्या है? तांडव। शिव जी का नृत्य तांडव। वो जो तांडव करते हैं वो सृष्टि को ध्वंस करने के लिए नहीं करते। शिव सृष्टि को ध्वंस करने के लिए तीसरा नेत्र इतना ही बहुत है उनके लिए। नाचना थोड़ा पड़ता है इतनी बड़ी पर्सनालिटी को। किससे तांडव करते हैं? जब भगवान का नाम सुनते हैं ना और कीर्तन होता है ना, ढोलक बजती है, शिव जी रह नहीं पाते। उस नाम में विभोर होकर आनंद में शिव भी नृत्य करते हैं। और वो नृत्य पूरी जटाएं खुल जाती हैं, होश ही नहीं रहती। वो है उनका तांडव। प्रहलाद जी भी भगवान का नाम करते हैं और पूरा विश्वास के साथ नाम करते हैं। शिव जी अपने रुद्राक्ष की माला पर राम नाम का जप करते हैं। ये कॉमन है इन तीन पर्सनालिटीज में। इसलिए सारी नेगेटिविटी को भी समाप्त करने वाले। और ये तीनों पर्सनालिटी जो हैं ये भगवान कृष्ण को समर्पित हैं। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान का उपासना करते हैं। वो कौन है? कृष्ण के अवतार हैं। शिव क्या करते हैं? अभी तो कृष्ण जन्म हुआ नहीं, जब जन्म होगा तो बताऊंगा। शिव भी एक सन्यासी का वेश धारण करके बाल गोपाल का दर्शन करने आए। भिक्षां देहि अलक निरंजन कन्हैया का दर्शन करने आए। वो शिव श्री कृष्ण की रास लीला का दर्शन करने आ गए। और मीरा जी तो बस गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, गिरधर गोपाल नाम करती रहती है। इसलिए इन तीनों को अगर हम अपना आदर्श बनाएं, मतलब जो ये करते हैं हम भी अगर करें, तो विश्व मतलब सारी नेगेटिविटीज, वो सारी नेगेटिविटी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया। नष्ट प्राय, वो नष्ट हो जाएंगे सारी नेगेटिविटीज, अभद्र सारे। कब? जब हम श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे और विश्वास के साथ भगवान का नाम करेंगे। ये कोई मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं कोई प्लेटफॉर्म स्पीकर नहीं हूं, माइक पकड़कर एक नेता हूं और भाषण दे रहा हूं। अनुभूति की बात बोल रहा हूं, रियलाइजेशन के साथ बोल रहा हूं। जिसने विश्वास के साथ हर रोज भगवान का नाम जप किया है, हर रोज, वो स्वयं इस बात को बता सकता है, सारी नेगेटिविटी चली जाती है। ऐसे करते 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 बहुत सी स्टेजेस को पार करके एक ऐसी स्टेज आती है जहां भगवान के साथ प्रेम जुड़ जाता है। बस, और जैसे वो प्रेम जुड़ता है भगवान के साथ, इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उस भक्त की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कभी हंसता है, कभी थोड़ा थोड़ा रोता है। क्यों? अब भगवान के साथ प्रेम हो गया। तो ऐसी स्थिति में जानते हो क्या होता है? इसको ध्यान से सुनना है। ऐसी स्थिति में कृष्ण 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 बोलते जमीन पर गिर पड़ता है। सामने भगवान आ जाते हैं। सामने जैसे भगवान आते हैं, ये साधक, ये भक्त भगवान को अपने नेत्रों से देखता है, लेकिन देख नहीं पाता। क्यों? भगवान के शरीर से इतना दिव्य तेज निकलता है, अभी इसकी भक्ति पूरी नहीं हुई। और भगवान को देखकर
देख नहीं पाता, बेहोश होकर गिर पड़ता है। उस समय भगवान क्या करते हैं? इसके निकट आकर कान में कुछ शब्द बोलते हैं। भगवान के मुख से जो शब्द निकलता है वो अमृत जैसा है, इतना मीठा, इतना सुरीला वो शब्द निकलता है। अमृत, साक्षात अमृत निकलता है। और कान क्या करते हैं? जितनी और सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो सारी इंद्रियां इस कान को स्ट्रेंथ देती हैं कि तुम भगवान के इस मधुर शब्द को तुम सिर्फ सुनो नहीं, इसको आस्वादन करो, टेस्ट करो। सारी सेंसेस समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? आंख, नाक, ये सब कुछ कान को एनर्जी देते हैं। ये भक्त कान से भगवान का शब्द सुनता है, आंख खुलती है, भगवान को देखता है, लेकिन फिर मूर्छित हो जाता है। तो भगवान इसके निकट आकर अपने हाथ को इसकी नाक के आगे लाते हैं, तुम मुझको थोड़ा सा स्मेल करो, सूंघ लो। तब जितनी और सेंसेस हैं, ये सारी सेंसेस आकर नाक को, नोस्ट्रिल्स को एनर्जी देती हैं कि तुम भगवान के सुंदर सौरभ जो निकल रहा है उनके शरीर से, उनको सूंघ लो। फिर ये उठता है, भगवान को देखता है, फिर गिर पड़ता है। अब ये जो गिरना है वो ये नहीं समझना कि डिहाइड्रेट हो गया, कमजोरी हो गई, विटामिन कम हो गया, नहीं। ये एक ट्रांसेंडेंटल इमोशन है। इसमें इतना आनंद और सुख लगता है, आप चिंता भी नहीं कर सकते। आपको बैठे बैठे टेक्स्ट आ जाए आपकी लॉटरी निकल गई $100 मिलियन, कितना सुख लगेगा ना। ये सुख तो एक घास के बराबर भी नहीं है। वो सुख जब भगवान के साथ कनेक्शन होता है, बिलीव माय वर्ड्स, संसार का जितना बड़ा सुख है वो सब इनसिग्निफिकेंट हो जाता है उस सुख के आगे जहां पर भगवान का यह स्वागत होता है। ऐसे करते करते 5 बार ये बेहोश हो जाता है। भगवान कहते हैं, सोचते हैं मैं जो इतना सुंदर हूं, क्यों इतना सुंदर हूं? जो मेरा भक्त ही मेरे को देख नहीं पा रहा है। तो जैसे हाथ में रिमोट होता है ना, ऐसे भगवान इच्छा प्रकट करते हैं। क्या इच्छा प्रकट करते हैं? इस भक्त के अंदर जो भक्ति है वो रेज हो जाए, बढ़ जाए। जैसे भगवान ये इच्छा करते हैं, इसके हृदय में भक्ति जब बढ़ती है, आंख खोलता है, सामने कृष्ण का दर्शन करता है। जैसे भगवान का दर्शन करते हैं, इसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और भगवान निकट जाकर इसको जोर से जो गले लगा लेते हैं। आज कृष्ण भी रोने लग जाते हैं और वो भक्त भी रोने लगे, दोनों रोते हैं। क्यों रोते हैं? आप कहेंगे रोना तो दुख का रोना होता है। क्या सभी आंसू दुख वाले होते हैं? सुख के भी आंसू होते हैं ना। ये लैंग्वेज समझ आती है? सुख वाले आंसू समझ आ रही है? आपकी बेटी या बेटा मान लो 5 साल के लिए स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, आ नहीं सकती है 5 साल तक, और अभी कितनी 17-18 साल की है, जस्ट एग्जाम्पल। जब आप उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जाएंगे, वो सेपरेशन हो रहा है ना, किसी को कहना पड़ेगा थोड़ा सा रो लो, ये नेचुरल होगा, ये नेचुरल होगा। और वो ही बेटी 5 साल के बाद जब आएगी एयरपोर्ट पे, तो अराइवल पर क्या होगा? जब दूर से अपनी बेटी को देखोगे और आकर जोर से पापा बोलकर जो गले से लगाएगी, उस समय क्या होगा? इमोशनल हो जाता है ना कोई, उस समय भी आंसू निकलते हैं ना। अब बताओ ये दुख के आंसू के सुख के आंसू है? हाँ, मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, हर 7 दिन में फ्लाइट होती है मेरी, और ये सीन में डिपार्चर और अराइवल दोनों गेट्स पे देखता हूँ। डिपार्चर का रोना कुछ और है और अराइवल का रोना कुछ और लैंग्वेज डिस्क्राइब करता है। यही बात है।
जब हम भी कभी एक जन्म में ऐसा होगा, ये नहीं सोचना हम कोई एक्सेप्शनल है, कभी तो होगा। भगवान के आमने सामने जब होगा और भगवान गले लगाएंगे हमको, इतना ट्रांसडेंटल इमोशन हृदय में उमड़ेगा ना, भगवान भी बड़े प्रसन्न होंगे। उनकी आंखों से भी प्रेम के आंसू बहेंगे और भक्त के आंखों से भी प्रेम के आंसू बहेंगे। समझ आई बात? उस समय वो भक्त हाथ से भगवान के आंसू को पहुंचता है और भगवान अपने कोमल हाथों से उस भक्त के आंसू को पहुंचते हैं। भक्त कहता है, हे भगवान, मैंने तो आपका बहुत अपराध किया, आप मुझको क्षमा करना। कृष्ण उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, क्या बोल रहे हो? मैं सोचता हूं कि मैं ऑब्लाइज्ड हूं, मैं आभारी हूं तुम्हारा। तुमने मेरे लिए सारी अटैचमेंट्स को छोड़ दिया। तुमने मेरे लिए अपने माता पिता, घर परिवार, अपने घर, जितना सुख, कंफर्ट, लग्जरीज, सब कुछ छोड़ दिया, है ना? कभी इसको वैल्यू करते हैं? जितने साधु हैं, नॉट ऑल, मेजॉरिटी, ये कोई ऐसे वैसे गरीब परिवार से नहीं, बड़े अच्छे परिवार के, पढ़े लिखे, विद्वान, सारी फैसिलिटीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज में रहते हुए भी ये अपनी सारी अटैचमेंट, माता पिता की अटैचमेंट, भाई की अटैचमेंट, घर की अटैचमेंट, बिजनेस की अटैचमेंट, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ छोड़कर वृंदावन में गलियों में राधे राधे करते बोलते फिरते। क्यों? ऐसा क्या मिल गया इनको, या क्या चाहते हैं? सोचकर देखना। ये सारी अटैचमेंट को छोड़कर, वो सारी अटैचमेंट कंसोलिडेट होकर जब भगवान की ओर जाती है, तो धीरे 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 उनकी अटैचमेंट बढ़ती है। भगवान कह रहे, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ छोड़ा, त्याग दिया मेरे लिए, आई एम द वन। और उसके साथ साथ तुमने बहुत लोगों की गालियां भी सुनी। जब कोई घर छोड़ता है ना, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ जरूर कोई बात होगी इसलिए घर छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए घर छोड़ दिया, हाँ कोई अफेयर होगा इसलिए घर छोड़ दिया, देखो इनके परिवार में कोई प्रॉब्लम थी, है ना? 100 प्रकार की गालियां सुनते हैं समाज से, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसका एक इंटेंट है, मैं सारा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित होने जा रहा हूं। इसलिए कोई भी गाली देता है या ग्लोरीफाई करता है, आई शुड टेक एवरीथिंग सेम, सब बराबर ही है। भगवान कहते हैं, तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहन किया, तो मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, लेकिन मैं ग्रेटफुल हूं, लेकिन दूसरी ओर भगवान साधक बोलता है, नहीं मैं आपका अपराधी हूं, मैंने बहुत से अपराध किए। भगवान ने कहा, जरा एक बताना कौन सा अपराध किया तुमने? बोलते ये अपराध किया, जब भी मैं आपके रूप के बारे में बताता था तो कहता था आपका रूप कमल जैसा है, आपकी आंख कमल जैसी, आपके हाथ कमल जैसे, लेकिन अब मैं साक्षात जब आपको देख रहा हूं तो मैं सोचता हूं मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। कहां ये संसार का एक छोटा सा कमल, इनसिग्निफिकेंट मटेरियल वर्ल्ड का, और कहां इतने सुंदर आप हैं, तो प्रभु मुझको आप क्षमा करना। जैसे ये बोलता है भगवान, जब तुरंत उसको जो गले से लगाते हैं, दोनों फूट फूट कर रोते हैं और दोनों ही दूसरों की आंखों के आंसू पहुंचते हैं। ऐसा मधुर संबंध होता है। फिर वहीं से भगवान उस भक्त को उस यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से लेकर अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में जाते हैं। इसलिए कोई भी डायरेक्ट भगवान के धाम नहीं जाता, एक स्टॉप ओवर है, एक ले ओवर होता है। कहां पर?
उस यूनिवर्स में जहां पर भगवान आए हुए हैं और ये रास लीला, माखन चोरी लीला, ये सारी लीला कर रहे होते हैं, वहां पर उसका जन्म होता है। वो एक स्टॉप ओवर है। फिर वहीं से भगवान उसको लेकर गोलोक वृंदावन में अपने धाम में उसको स्थापित करते हैं। ये है श्री कृष्ण के एक आने का कारण। समझ रहे हैं? ये भी एक कारण है। अच्छा, वृंदावन में सब लोग करते क्या है? अगर हम सोचें कृष्ण करते क्या है और वृंदावन के सब लोग क्या करते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, एक ही काम है। सारे साधु संतों का एक ही काम है, यदि वो बोनाफाइड हैं, जिसका जूठा खाओ उसी के गुणगान गाओ। होता है ना? मैं जिसका जूठा खाऊंगा उसी की बात करूंगा। अगर हमने एक पेट रखा है घर में, सपोज एक डॉग, एक कुत्ता है, अच्छा वो तो पेट है। इंडिया में तो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, यहाँ तो नहीं है। आपको सबको पता है, फेमिलियर है। वो स्ट्रीट डॉग को भी आप 2 दिन रोटी दे दो बस, वो क्या हो जाएगा? आपका प्यारा बच्चा है, आपको प्रोटेक्ट करेगा। इतनी ममता वो रखता है क्योंकि आपने उसको कुछ खाने के लिए दिया। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान का जूठा खाते हैं। प्रसाद क्या है? कथा के बाद सब लोग जब बॉक्स लेके जाते हैं, वो क्या है? भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद। किस लिए हम प्रसाद खाते हैं? जिसका जूठा खाओ उसके गुण आ जाते हैं। ये याद रखना। अब जिसका जूठा खाओगे उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगी। हम भगवान का जूठा क्यों खाते हैं? भगवान की क्वालिटीज, द गुड क्वालिटीज, द ट्रांसडेंटल क्वालिटीज वो हमारे अंदर आ जाए, इसलिए हम जूठा खाते हैं। और वृंदावन में सब लोग कृष्ण का जूठा खाते हैं। और वो क्या है? सिर्फ खाना ही जूठा नहीं होता, कानों से सुनना भी उनका प्रसाद है। मुंह से उनका नाम लेना वो भी प्रसाद है। और मुख से खाना भी वो भी प्रसाद है। हाथ से ताली बजाना कीर्तन में वो भी प्रसाद है। इसलिए वृंदावन में सब लोग कृष्ण के गुणगान गाते हैं। सचिन तो कैन यू प्लीज कम हियर? उनके गुण गाते हैं। एक भजन सुनेंगे? वृंदावन में ना एक ऐसी लीला हुई है जो संसार में और कहीं नहीं होती, बताओ। और वो श्री कृष्ण ही करते हैं। कौन सी होती है? ऑडियंस, हाँ, रासलीला। राम जी रासलीला करते हैं, नरसिंह भगवान करते हैं, परशुराम जी करते हैं। कौन करता है? श्री कृष्ण करते हैं। रास में बहुत सारी गोपियां हैं ना, गोपियां एक दूसरे को सखी बुलाती हैं। गोपियां एक दूसरे को सखी बुलाती हैं। तो एक भजन मेरे साथ गाइए आप। सखीरी मेरो मन अभिलाषा है, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरो मन अभिलाषा है, मदन मोहन के गुण गाऊं। आपको आता है ना? आता है? किस किस को आता है बताओ। अच्छा, नहीं आता तो गा तो सकते हैं, हिंदी में है ना? तो मीठी मीठी ताली बजाकर मेरे पीछे पीछे दोहराओ। सखीरी मेरो मन अभिलाषा है, सखीरी मेरो मन अभिलाषा है। मदन मोहन के गुण गाऊं, मदन ओ मदन मोहन के गुण गाऊं, ओ सखीरी मेरो मन अभिलाषा, मदन मोहन के गुण गाऊं।
शीश में मोर मुकुट सोहे, शीश में ओ शीश में मोर मुकुट सोहे, शीश में पगन पे जनिया मन मोहे, पगन पे जनिया कमर पीतांबर नामुक से वर्णन कर पाऊं, पवन नामुक से वर्णन कर पाऊं, नामुक से वर्णन कर पाऊं, नामुक से ओ मदन मोहन के गुण गाऊं, बोलो मदन मोहन ओ सखी मेरो मन अभिलाषा है, मदन मोहन के गुण गाऊं, सखी कानन में कुंडल है आना, जोर से कानन में कुंडल है आना, ओ गले में वैजंती माला, गले अधर मुरली प्यारी लागे, सुनो तो मन में सुख पाऊं, अधर मुरली प्यारी लागे, सुनो तो मन में सुख पाऊं, सुनो तो मन में सुख पाऊं, मदन मोहन के गुण गाऊं, सखी मेरो मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं, समझ आ रहा है? मन अभिलाषा हो, ये लट मुख पे काली काली, ओ ये लट मुख पे काली काली, चाल मोहन की मतवाली, चाल जहाँ जाए से दर्शना है, बता दो ये कहाँ जाऊं, जहाँ जाए से दर्शन है, बता दो ये कहाँ जाऊं, बता दो ये कहाँ जाऊं, बता दो ओ मदन मोहन के गुण गाऊं, ओ सखी मेरो मन अभिलाषा है, मदन मोहन के गुण गाऊं, सखी मेरो मन अभिलाषा। ये नटवर रास बिहारी के, ये नटवर संग मिश भान दुलारी के, संग मिश, सुनाया? ये नटवर रास बिहारी के, देखता हूँ ताली में कितना जोर है। ये नटवर रास बिहारी के, ये नटवर रास बिहारी के, उधर से बात है। संग मिश भान दुलारी के,
ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। ओ राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री राधे। सब एक साथ ओ जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा सा ब्रेक लिया आपको। देखो श्री कृष्ण क्यों आते हैं? कृष्ण से पहले जो अवतार हुए उसमें जो कुछ भी बचा कुचा रह गया वो कृष्ण लीला में पूरा हुआ। अब बचा कुचा क्या रह गया इसको सुन लो आज। जब श्री राम जी सीता जी के साथ दंड करने वन में विचरण कर रहे थे उस समय बहुत सारे हजारों की संख्या में बैठकर ऋषि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे। देखो कैसी अद्भुत बात है। जैसे कुछ लोग अगर कहें द्वापर में श्री कृष्ण आए और फिर चले गए, भगवान जन्म लेते मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर युग में कृष्ण रहे हैं, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। अच्छा भागवत जी में आप लोगों ने ध्रुव जी की कथा सुनी? किसने सुने ध्रुव जी की कथा? ध्रुव जी को सत्य युग में, ये सत्युग की बात है, एक मंत्र दिया गया था। नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया था। बताएंगे कौन? हाथ खड़े करो, मैं उनसे पूछूंगा, उनको डबल प्रसाद मिलेगा। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। नहीं, इन लोगों से नहीं पूछूंगा। मत बताओ, नहीं आप बताओ पीछे। हाँ बताओ, हाँ क्लैपिंग करो उनके लिए। इनको एक दाना चावल एक्स्ट्रा देना। Just joking. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कौन है?
और ये कब की बात है? सतयुग की। सतयुग में वासुदेव कहां से आ गए? अगर हम कहें द्वापर में जन्म हुआ और फिर चले गए, ऐसा नहीं है। हर युग में कृष्ण है। सतयुग में नारद जी मंत्र दे रहे हैं तो मतलब वासुदेव कृष्ण की एग्जिस्टेंस है कि नहीं? दूसरी बात, अब आज त्रेता युग है। जब राम जी वन में घूम रहे हैं तो हजारों ऋषि सुबह से लेकर रात तक आंख बंद करके एक मंत्र पे ध्यान दे रहे हैं। वो मंत्र है गोपाल मंत्र। उसको बोला नहीं जाता, मैं कह भी नहीं सकता, वो देने से दीक्षा हो जाती है। ऋषि मुनि ये सारा मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोई मंत्र जप करते हैं, ध्यान से समझना, कोई उपासना करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई टारगेट होता है, गोल होता है। नहीं तो बस ऐसे थोड़ा हवा में बस जो भी होगा देखा जाएगा। आप यहां पर आने के लिए भी जीपीएस सेट करते हैं। यू हैव टू डिफाइन योर डेस्टिनेशन। अपने डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ता है। इसलिए जब हम जब करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक डेस्टिनेशन भी डिफाइन करना पड़ता है, हमको जाना कहां है। वो ऋषि मुनि सारा दिन गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। अब गोपाल तो अभी द्वापर में आएंगे, लेकिन गोपाल तो द्वापर में भी क्या, त्रेता में भी है। इन ऋषियों का इंटेंट क्या है, उद्देश्य क्या है? ये सब पता क्या बनना चाहते हैं? राम जी की गोपी बनना चाहते हैं। है तो मेल फॉर्म, लेकिन जो फील है, जो इमोशन है, वो राम जी की एक सखी बनकर राम जी की सेवा करना चाहते हैं। समझ रहे बात को? जैसे मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में यहाँ पर, लेकिन वास्तव में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोल, हमारे जीवात्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसका फॉर्मेशन है, हम सब नेचर हैं, हम सब प्रकृति हैं। वी ऑल आर फीमेल्स। बॉडी भले मेल है, लेकिन हम सब फीमेल हैं, क्योंकि मेल तो एक ही है, वो है भगवान। ही इज पुरुष, परम पुरुष। तो वो सारे ऋषि राम जी की सखी बनकर सेवा करना चाहते हैं। और जब राम के सामने आए, रूप देखकर मोहित हो गए, प्रपोज किया, मतलब प्रपोजल रखा, हम आपकी सखी बनकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा, देखो, हमने तो एक प्रॉमिस लिया है, एक व्रत लिया है, एक पत्नी व्रत। सीता को छोड़कर मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। अब यहां पर एक बहुत बहुत गहरी बात है, इसको ध्यान से समझना। भगवान मना कर सकते हैं, लेकिन ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट एवरीवन्स इमोशंस। वो बाउंड है, सबकी भावना को स्वीकार करना ही पड़ेगा। थोड़े समय के लिए नो जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो ही उस भावना को स्वीकार करेंगे। नहीं तो बड़ा रूड हो जाएगा। नहीं, अरे हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप उनको देखते भी नहीं, मना कर दिया। जब राम जी के आगे ये प्रस्ताव, प्रपोजल गया, राम जी ने कहा कि नहीं, देखो, मैं तो सीता एक ही पत्नी है मेरी, और किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। अब इतने हजारों ऋषि बैठे हैं, इनकी फीलिंग्स का क्या होगा, इनके इमोशंस का क्या होगा? ऐसे मना कर दिया भगवान ने। नो, ही इज बाउंड टू रेसिप्रोकेट। तो वो सारे ऋषि गोपियां बनकर आई कृष्ण लीला में, और श्री कृष्ण ने इन सारे गोपियों को, वो जो ऋषि थे राम जी की लीला में, इनको स्वीकार किया और इनके साथ रेसिप्रोकेट किया इन द फॉर्म ऑफ डांसिंग विद देम। और वही क्या है? रासलीला। समझ आ रहे हैं? ये जो गोपियां हैं, ये ऋषि मुनि हैं राम जी की लीला के। राम जी तो एक पत्नी व्रत हैं, उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन उस ऋषि की भावना को कृष्ण लीला में पूरा किया। सेकेंडली, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम एक और बताता हूं बस। दूसरा, रावण की एक बहन थी, क्या नाम था? हाँ, इसको तो सब जानते हैं, बड़ी पॉपुलर है।
वो राम जी के पास आ गई और उसने भी प्रपोजल किया। बोलते लव एट फर्स्ट साइट, राम जी को देख के प्रपोज कर दिया। मैं आपकी बनकर रहना चाहती हूं। राम जी ने कहा देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन है। मैंने सीता को एक वचन दिया है, मैं सीता को छोड़कर किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास बताओ। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण अकेला है, इससे पूछ लो। तो उसने लक्ष्मण जी को देखा, बोलते आप भी कोई कम सुंदर नहीं है, आप मुझको स्वीकार करो। लक्ष्मण जी किस लिए स्वीकार नहीं कर रहे उसको? जो एक बार मेरे राम को अपने भाव दे चुका है, उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, राम जी ही स्वीकार करेंगे। बात समझ आ रही है? होता ना, पहला जो प्लेट होती है वो भगवान को ऑफर की जाती है। अगर शूर्पणखा पहले लक्ष्मण जी के पास आ जाती तो हो सकता है सीन कुछ और होता, हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन पहले राम जी को ऑफरिंग हो चुकी है, किसकी? अपने प्रेम की, अपनी फीलिंग्स की, अपनी इमोशंस की। राम जी को ऑफरिंग हो चुकी है, लक्ष्मण जी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने कहा, ट्विस्ट करके एक बात को कहा, देखो शूर्पणखा, भैया की पत्नी बनोगी तो महारानी बनते रहोगी, और मैं हूं इनका सेवक, मेरी पत्नी बनोगी तो दासी बनते रहना पड़ेगा, तुमको क्या स्वीकार है? बोलते दासी क्यों बनूंगी, मैं तो रानी बनूंगी, तो जाओ फिर राम जी के पास जाओ। ये बोल दिया, लेकिन अंदर की भावना लक्ष्मण जी क्या थी कि ये ऑलरेडी अपनी भावना को राम को समर्पित कर चुकी है, भैया को, अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता इसको। समझ आई बात? तो फिर राम जी के पास आ गई। राम जी ने कहा देखो, मैंने तुमको मना किया था ना, लक्ष्मण के पास जाओ। तो टॉस हो रहा है इसका। फिर राम जी के इशारे से लक्ष्मण जी ने क्या किया? नाक और कान को काट दिया। दैट्स वेरी क्रूर। क्रूरती है वहां पर, है क्या ना? नहीं, यही बात आज आप समझना। जब हम कभी रामायण देखते हैं या कृष्ण सीरियल देखते हैं या सुनते हैं, तो कुछ चीजें रिकॉन्साइल करना मुश्किल हो जाता है। भैया भगवान ने ऐसा क्यों किया? आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं? प्रैक्टिकल 3 साल 4 साल पुरानी बात है सर। इंडिया में एक टाउन है अंबाला, मैं वहां पर भागवत कर रहा था, और रात को ऐसी कथा के बाद नाइट वॉक कर रहे थे हम एक स्ट्रीट में। तो अंदर से कुछ लोगों के एक घर से 2 भाइयों की लड़ने की आवाज आ रही, बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं, और कोई प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत चल रही थी। मैं अपने साथ 3-4 डिवोटीज थे, प्रॉपर्टी बोल रहे थे और जोर से चिल्ला रहे थे। तो क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या कंक्लूजन निकलेगा? प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं ना, किसी को ज्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गई होगी। मैंने कंक्लूड कर लिया अपने आप से। 3 दिन के बाद उसी एरिया में एक हाउस प्रोग्राम था, तो मैंने उनको बोला देखो, झगड़े का जमाना तो है ही, कलयुग में रहते हैं, सबको प्रॉपर्टीज चाहिए, भाई भाई में भी झगड़ा होता है। जो एक ही माता के गर्भ में आए हैं, वomb में आए हैं, बड़े होकर वो भी झगड़ते हैं। जैसे उस घर में मैंने परसों सुना कितना झगड़ रहे थे 2 भाई। मैंने जब बोला तो एक व्यक्ति पीछे बैठा ऑफेंड फील किया उसने हाथ खड़ा किया, कहता है कि एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कहूँ? मैंने कहा हाँ कहिए। आप उस घर को जानते हो? मैंने कहा नहीं। उस घर में कभी गए? नहीं। तो आपने कैसे कंक्लूड कर दिया दोनों लड़ रहे हैं? मैंने कहा इतनी तेज बोल रहे थे, मार डालेंगे एक दूसरे को। बोलते महाराज मैं 40 साल से उनका फैमिली फ्रेंड हूं, आप तो बाहर से जो सुन लिया कंक्लूड कर दिया, आपको अंदर की बात पता नहीं। मैं उनके घर का अंदर का व्यक्ति हूं। मैं आपको बताता हूं, बड़ा भाई छोटे भाई को रोज लड़ता है। आप तो एक दिन सुने, हम तो रोज सुनते हैं।
ये बोलता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से प्रॉपर्टी संभलती नहीं है, मैं कोई नुकसान कर दूंगा, तो सब कुछ तेरे नाम करना चाहता हूं तो ले ले। और छोटा झगड़ रहा है, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं और मैं कोई लॉस कर बैठूंगा, आप बड़े हैं, पिता के समान हैं, आप ही रखो सारी प्रॉपर्टीज, मैं आपका छोटा भाई बन के ही रहूंगा। ये अंदर की बात है, समझ रहे हैं? वो एक दूसरे को देने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि लेने के लिए लड़ रहे हैं। मैंने उस दिन एक बात एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझी कि बाहर की बात कुछ और है और इनसाइड अंदर की बात तो कुछ और होती है, राइट? अंदर की बात कौन बता सकता है? जो अंदर का रहने वाला घर का व्यक्ति है। होते ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हम जो बाहर सुन लेते हैं, टीवी सीरियल में देख लेते हैं, हम कंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अंदर की बात कौन जान सकता है? जो अंदर रहने वाला व्यक्ति है। और वो कौन? ये जो परम संत हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, ये अंदर के लोग हैं और ये अंदर की बात खोलकर बताते हैं ऐसा क्यों किया। ये तो कहेंगे लक्ष्मण जी ने वेरी क्रूअल, उसको छोड़ देते, लेकिन उसको अगली क्यों कर दिया, कुरूप क्यों कर दिया, है ना? एक क्वेश्चन उठता है ना यहां पर। इसलिए जो मैंने पहले कहा उसको ध्यान से समझना। भगवान इज बाउंड, वो बंध जाते हैं हमारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड इफ वी आर डिवोटीज। ऐसे जैसे किसी की बात ज्यादा सुनते नहीं है, लेकिन अगर वी आर सरेंडर टू हिम, रोज उनका नाम करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो he also feel obliged, grateful, जबकि उनको नहीं होना चाहिए, फिर भी होते हैं। शूर्पणखा को ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने अपना प्रेम, अपना प्रपोजल राम जी के सामने रखा, लेकिन राम जी ने व्रत ले रखा है क्या? सीता को छोड़कर किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। तो आपने तो भगवान व्रत ले लिया, उसका क्या होगा? जिसने आपको प्रेम देना चाहा या आपसे प्रेम करना चाहा, उसका क्या होगा? आप उसको मना कर दोगे? नहीं। तुमने मुझको प्रेम अर्पण किया तो मैं ही स्वीकार करूंगा, तेरे को इस लायक कर दूंगा कि और कोई तेरे को स्वीकार नहीं करेगा। अगर शूर्पणखा ऐसी सुंदर रहती, वो सुंदरी थी, फिर तो कोई और राजकुमार उसको ले जाता, लेकिन कोई अगली को स्वीकार करता है? किसी का रूप खराब हो, आंख ऐसी हो, नाक कटा हो, कान कटा हो, कोई शादी करेगा उससे? नहीं। इसलिए कि अब मैं ही स्वीकार करूंगा, कोई और स्वीकार नहीं करेगा। वही शूर्पणखा कृष्ण लीला में कुब्जा बनकर आई, और किसने स्वीकार किया उसको? कृष्ण स्वीकार किया। ये एक और कारण था श्री कृष्ण के आने का। देखो, सीधी सीधी बात है, वेरी स्ट्रेट, कोई घुमा फिरा के नहीं कर रहा। कुब्जा कैसी थी? ऐसे 3 जगह से टेढ़ी हंसकर ऐसे थी जन्म से। श्री कृष्ण भगवान कैसे हैं? बड़े सुंदर होते हैं। तो अगर कुब्जा श्री कृष्ण को देखकर, समझना इस बात को, अगर कुब्जा भगवान को देखकर इंप्रेस हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही अच्छी नहीं है ना, देखने में सुंदर नहीं है ना, कहने का मतलब। लेकिन कृष्ण कुब्जा को स्वीकार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कुब्जा भगवान को इतने सुंदर को देखकर अगर प्रेम प्रपोज कर रही है तो नेचुरल है, लेकिन भगवान भी कुब्जा के प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, ये तो अनयूजुअल है। इससे भगवान का एक गुण प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है। क्या वो आपका रूप नहीं देखते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को देखते हैं। दिस इज अ प्रूफ। क्योंकि जब मथुरा में श्री कृष्ण ने कुब्जा को देखा तो उनको सुंदरी कहा और सारे लोग हंसने लग गए, है ना? सरकास्टिक, ये सरकाज़म है। जो अच्छी नहीं है उसको सुंदरी बोलो, मतलब आप टॉन्ट कर रहे हो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, कुब्जा ने कहा मैं अच्छी नहीं हूं इसलिए
इसलिए आप मेरे को सुंदरी बोल रहे हो? भगवान ने कहा मैं तो रूप देखता ही नहीं कुंजा, मैं तो तुम्हारा प्रेम देखा है। तुमने जो मेरे को प्रेम दिया है, उस प्रेम को फाउंडेशन आधार लेकर मैं उस प्रेम को रेसिप्रोकेट करूंगा, क्योंकि नो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइज टू कृष्ण। उन्होंने ऐसा कोई व्रत नहीं लिया। अगर कृष्ण भी ऐसा कोई व्रत ले लेते तो इतने पुराना जो हिस्ट्री चल रही है उसको कौन संभालता और कौन रेसिप्रोकेट करता? राम जी तो व्रत लेकर अच्छे बन गए और उन्होंने मर्यादा भी दिखलाई जो कि बहुत जरूरी थी। लेकिन अगर कृष्ण भी ये व्रत ले लेते तो इन सब की फीलिंग्स का क्या होता? इसलिए कृष्ण करुणा सिंधु, इस ओशन ऑफ कंपैशन, वो भी चाहते तो बड़े बड़े व्रत ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। किन के लिए? इन सारे भक्तों के लिए जिन्होंने अपना प्रेम श्री राम को समर्पित करना चाहा। श्री कृष्ण उन सबके प्रेम को ग्रहण किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, थोड़ा जोर से कृष्णचंद्र भगवान की। यस। अब हम आते हैं जो हमारा आज का सब्जेक्ट कृष्ण जन्म, ये सब्जेक्ट नहीं है। कृष्ण जन्म रहस्य, सीक्रेट, ये सब्जेक्ट है और वो सीक्रेट आज सुनकर जाना। कृष्ण जन्म सुनेंगे? सुनेंगे? हाँ जी, तो एक बार जरा जय लगाना, जोर से बोलो। इनकी तरफ से माइक मेरे पास है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की। ब्रज में एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम हुआ देववीर। उनकी दो पत्नियां हुई, एक क्षत्रिय और एक गोप जाति की। क्षत्रिय पत्नी से राजा को पुत्र हुए जिनका नाम हुआ शूरसेन, और जो गोप जाति पत्नी, उनसे पुत्र हुए, उनका नाम हुआ प्रजन्य। समझ आया? पति और उनकी दो पत्नियां, दो डायनेस्टी चल रही है। क्षत्रिय पत्नी से शूरसेन, गोप जाति पत्नी से प्रजन्य जी। इन्हीं शूरसेन जी के यहाँ पर आगे वसुदेव जी का जन्म हुआ और वहां प्रजन्य जी के यहाँ पर 5 पुत्र हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। जिनमें जो मझले, जो बीच वाले, वो हुए नंद, श्री नंद जी। अब नंद जी का विवाह हुआ, वसुदेव जी का भी विवाह हुआ। वसुदेव जी का विवाह रोनी जी से हो रखा है, लेकिन कंस भी चाहता है कि उसकी बहन देवकी का विवाह भी वसुदेव जी से हो। तो राजा तो उनको परमिशन है, अलाउड है, वो बहुत सारे विवाह कर सकते हैं। जैसे बताओ तो, हाँ, गुड क्वेश्चन। आज तो मैं अपने हाथ से उसको प्रसाद दूंगा। दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? हाथ खड़े करके बोलना है सभी को। और जिसने गलत बोला ना, नहीं डरो नहीं, जस्ट जोकिंग। दशरथ जी की पत्नियां, यस माता जी, हाँ, मोर देन 700? रॉन्ग, नहीं, 3 रॉन्ग। आप चुप रहो, गोविंद जी गौड़े बैठ में चुप रहेंगे। और बताओ, एनी अदर कैंडिडेट? इधर से कोई? 3 भी गलत है, 700 से ज्यादा वो भी गलत है। यस, रॉन्ग। यस, टोटली रॉन्ग। अच्छा, विष्णु प्रभु बताएंगे। 360, 360 रानियां दशरथ जी की। समझ रहे हैं? अच्छा, कोई क्विज नहीं चल रहा है, तो जस्ट आपके साथ प्रेम का रेसिप्रोकेशन हो रहा है। और पूरे भागवत में एक ऐसे कैरेक्टर हैं, पर्सनालिटी है, सॉरी, जिनकी सबसे ज्यादा रानियां हुई। माय गुडनेस, ये तो बहुत ज्यादा है। ये मामी को पता है, बता सर, हम बताना। ये हमारी मामी थी पीछे,
बताओ, आप कोई पूछ रहा हो? हाँ नहीं, अच्छा आप बताओ, कोई भी बताओ, सबसे ज्यादा रानी कृष्ण की 16,008? नहीं, इससे भी बड़े बड़े बैठे हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी पर्सनालिटी है चित्रकेतु महाराज, इनकी कितनी 1 करोड़ रानी, 10 मिलियन क्वींस। आप सोच रहे कैसे संभालते हैं 10 मिलियन। अच्छा फिर कभी सुनेंगे, अभी टॉपिक दूसरा है। तो एनीवे, वसुदेव जी का रोनी जी से विवाह हो चुका है और कंस चाहता है उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से तय हो गया। जिस समय विवाह पूरा हुआ और क्या बोलते हैं, वसुदेव जी और देवकी जब रथ पर सवार हुई, कंस कहने लगा, देवकी मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूं मेरी बहन, मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ के जाऊंगा। घोड़ों की लगाम को जो पकड़ा और चलने लगा, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, कंस ये देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने जैसे सुना, अभी तक इतना प्रेम दिखला रहा था देवकी को, और अब उसने क्या किया, ये सुनकर जो तलवार निकाली, देवकी के केशों को पकड़ लिया। जब जब किसी महिला के केशों को पकड़ा गया है ना, तब तक विनाश हुआ है। एक बार पहले हुआ था, द्रौपदी जी के केशों को पकड़ा था दुशासन ने, महाभारत हुआ। दूसरी बार कंस ने देवकी जी के केशों को पकड़ा और कंस क्या, जितने असुरों सबका संहार हुआ। जो मारने लगा अपनी बहन को, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले कंस तुम मेरी पत्नी को कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारी बहन नहीं अभी मेरी पत्नी है, क्यों मारना चाहते हो? अरे सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण है। वसुदेव जी ने कहा, देवकी तो कारण नहीं है, तो क्या मतलब? मैं तुमको वचन देता हूं, जब हमारी कोई संतान होगी मैं तुमको अर्पण करूंगा, तुम जो इच्छा सो करना, लेकिन अब देवकी को तुम कुछ नहीं कह सकते। कंस वसुदेव जी की बात को विश्वास करता है। क्यों? वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। सत्यम विशुद्धम वासुदेव इति शब्दितम। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, और कंस इस बात को जानता था, और कंस ने क्या किया, दोनों को जेल में बंद कर दिया। दोनों को जेल में बंद कर दिया, और जेल में ही कारागृह में देवकी की एक प्रथम बालक हुआ, प्रथम पुत्र हुआ। अब वसुदेव जी लेकर उन जाने लगे। देवकी ने कहा, मेरा भाई कंस बड़ा दुष्ट है, पता नहीं क्या कर बैठेगा, इसलिए मत ले जाओ। वसुदेव जी ने कहा, देखो मैं संकल्प का पक्का हूं, जो कहा था विश्वास करके ही कहा था। बालक को लाकर कंस के सामने रख दिया। लो कंस, अपना वचन पूरा किया, ये प्रथम संतान तुमको अर्पण कर दे। कंस देख रहे छोटा सा बच्चा अभी भी जन्म लिया, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, और ये तो पहला है, 7वां नहीं है, 8वां नहीं है। वसुदेव जी आप ले जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बालक को लेकर आ गए और देवकी को दे दिया। देखो देवकी, तुम्हारे भाई ने बालक छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। देवकी अब अपने हीले से अपने भाई को, कंस को आशीर्वाद देने लगी, आशीर्वाद देने लगी। और ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। अगर देवकी कंस को आशीर्वाद देगी तो कंस मरेगा नहीं, भगवान आएंगे नहीं। भगवान तो तब आएंगे जब देवकी रोएगी, जब से सहन नहीं होगा। इन देवताओं को काम बनाने के लिए श्री नारद जी, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, संत हैं, देखो ये टीवी सीरियल पे मत जाना,
वहां पर नारद जी को ऐसा एक प्रेजेंट किया गया जैसे कोई कार्टून है, कोई लड़ाई कराते, झगड़ा कराते। इतने बड़े पूरे संसार के गुरु हैं नारद जी, जिन्होंने वाल्मीकि जैसों को, जिन्होंने एक शिकारी को, ऐसे कितनों को जो भगवान की भक्ति, ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को भक्ति प्रदान कर दी। ये कोई कार्टून है? लेकिन मूवीज में, सीरियल्स में ऐसा दिखाते हैं, कभी नहीं दिखता। नारद जी गुरु हैं और ऐसा लगता है झगड़ा कराते हैं, वास्तव में क्या करते हैं? भगवान की लीला को नरिश करते हैं। कैसे? अभी बताता हूं। नारद जी कंस के पास आ गए और एक पुष्प ले, एक फ्लावर लेकर आए। बोलते कंस जरा गिनना इसके कितने पेटल्स हैं। कंस ने गिना, 1 2 3 4 5 7 8। अच्छा कंस, गुड काउंटिंग। इसको घुमाना जरा, फूल को। उसने घुमा दिया। अब बताओ, जो पहला था वो कहां गया? तो क्या कह रहे हैं नारद जी, हमको समझ नहीं आई बात। बोलते बेटा, मैंने तेरे को एक फूल दिया है, उसमें 8 पेटल्स थे, तुमने गिना 1 2 3, अब तुमने घुमा दिया। अब बताओ 1 कहां है? तो मैं कैसे बताऊं 1 कहां है? वो 1 कहां है, मैं कैसे बताऊं? आपने कहा घुमा दिया, मैंने घुमा दिया। बोलते ये तो समझाने में आया, वो जो पहला पुत्र तुमने छोड़ दिया, क्या पता वही 8वां पहला बनकर आ गया? कंस ने कहा नारद जी, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, आप तो गुरु जी हैं, ज्ञान दिव्यरंदस, आपने मेरी आंखों को खोल दिया। कंस तो क्रोध में तलवार लेकर जेल में गया और वसुदेव जी के, देवकी के हाथ से बालक को पकड़ा और दीवार पर मार दिया उसको। आप सोचेंगे नारद जी ने गड़बड़ करा दी ना, सब कुछ तो ठीक ठीक हो रहा था। अरे एक नहीं, ऐसे कंस ने 6 बच्चों को मार दिया, देवकी के 6 बालकों को। तो गलत किया ना नारद जी ने। ये तो ऊपर की बात है, अब अंदर की बात क्या है? ये जो 6 बालक थे, इनको ब्रह्मा जी का शाप लगा हुआ था। That's the background story. ब्रह्मा जी ने जब क्रिएशन की तो अपनी बेटी को भी बनाया, एक कन्या को बनाया। अपनी कन्या को देखने लगे ऊपर से नीचे तक और अपनी कन्या के पीछे पीछे गए। और ये जो 6 बच्चे थे, ये ब्रह्मा जी को देखकर टॉन्ट करने लगे, हंसने लगे। अपनी कन्या के पीछे हम भाग रहे हो? ब्रह्मा जी को सुनकर बड़ा क्रोध आया। कहते कितने मूर्ख हो तुम लोग, मेरे प्रति ऐसी गंदी भावना रखते हो। ये तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, डिमोनिक है। मैं तुमको अभी के अभी पनिश करता हूं, शाप देता हूं। जब तक तुम किसी एक डीमन, एक असुर के हाथों से नहीं मरोगे, तब तक भटकते रहो तुम। ये बेचारे कब से भटक रहे थे इधर, इनको उद्धार नहीं, इनका डिलीवरेंस नहीं हो रहा। नारद जी ने इनको कंस के द्वारा मरवा कर इनको शाप से मुक्त करवा दिया। इनका उद्धार हो गया, इनकी डिलीवरेंस हो गया। अब बताओ नारद जी ने गलत किया कि सही किया? ऊपर से लग रहा है मरवा दिया, लेकिन मरवा नहीं दिया, इनको लिबरेट करवा दिया। ऐसे ही नारद जी की बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं ऊपर से लगती हैं झगड़ा कराने वाली, लेकिन वो वास्तव में झगड़ा वाली नहीं, भगवान की लीला को नरिश करने वाला। ऐसे देवकी जी के अब 7वें गर्भ में संकर्षण आए और उधर रोहिणी मैया भी प्रेग्नेंट थी, उनके गर्भ में बलराम जी का जन्म हो रहा था। तो बड़ी ट्विस्ट है स्टोरी में यहाँ। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, रोहिणी के गर्भ में जो बालक है और देवकी के गर्भ में जो बालक है, उनको दोनों को ट्रांसफर कर दो। ये कभी नहीं सुना होगा, टीवी में भी नहीं दिखाते। देवकी का जो 7वां गर्भ था, वो रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर हो गया। किसने कराया? योग माया जी ने कराया। और देवकी जी ने डिक्लेयर कर दिया मेरा मिसकैरेज हो गया। कंस को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
और देखते देखते अब वो समय आ गया जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे। देवकी जी को 8वां गर्भ हुआ, और जब 8वां गर्भ हुआ सारा जेल पूरा एनलाइटेंड, पूरा एकदम तेज हो गया, और सारे देवता आकर देवकी जी के गर्भ की परिक्रमा करने लगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम, सतस्य योनिम निहितम त सत्यम, सतस्य सत्यम स्थिति नेत्र सत्यम, सत्य आत्मतम शरणम प्रभु। देवकी जी के गर्भ में कृष्ण आए हुए हैं। सारे ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र आकर सब देवकी जी के गर्भ को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान को सत्य 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 कह रहे हैं। अब वो समय आया, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, अर्धरात्रि के समय मथुरा में देवकी वसुदेव जी के सामने जेल में श्री कृष्ण चंद्र देवकी वसुदेव जी के सामने 16 वर्ष के बालक, कान में कुंडल, सिर पे मुकुट, 4 भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म, चरणों में नुपुर, गले में पीतांबर ऐसे धारण करके प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अभी जन्म नहीं हुआ, अभी प्रकट हुए हैं। क्या मतलब? अभी तो सीक्रेट बाकी है, सस्पेंस हमेशा लास्ट में रखते हैं, है ना, तब वो भी पूरी होगी ना। ये एक सस्पेंस है। जिस समय, जिस मुहूर्त में मथुरा में देवकी वसुदेव के सामने कृष्ण प्रकट हुए, उसी मुहूर्त में गोकुल में यशोदा जी ने ट्विंस को जन्म दिया, जुड़वा संतान, एक बालक और एक बालिका। नंद जी का यशोदा जी का विवाह हुआ, इनको संतान नहीं हो रही थी, इन्होंने एकादशी का व्रत किया, और फिर यशोदा जी भी एक दिन नंद जी यशोदा जी के पास आए, बोले यशोदा, मैंने एक स्वप्न देखा कल, एक छोटा सा बालक, शाम सलोना बालक तुम्हारी गोद में बैठकर खेल रहा है, क्या तुमको कभी ऐसा सपना आया? यशोदा जी ने कहा हाँ, मेरे को भी कल यही स्वप्न आया। बोलते तुमको भी आया, मुझको भी आया। और इतने में देखते देखते सन्यासी का वेश धारण करके एक देवी सामने आ गई। वो कौन थी? पौर्णमासी योग माया जी। बोले बस नंद जी, बहुत जल्दी आपके यहाँ पर एक बालक होने वाला है, ये सूचना आपको देने आई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हम तो स्वप्न की बात कर रहे थे, देवी ने आके और सेंशन कर दिया। यशोदा जी को गर्भ हो गया। 5000 साल पुरानी बात है। उस समय स्कैनिंग नहीं होती थी कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अरे इतनी पुरानी बात छोड़ो, अभी 50-60 साल पहले भी गांव में जो बड़ी बड़ी माता होती है ना, वो भी मुंह देखकर बता देती थी कि इसको लड़का होगा कि लड़की होगा। अभी 60-50 साल पहले की बात। और 5000 साल पुरानी बात, जो ब्रज की पुरानी बूढ़ी से जो कोई माता यशोदा जी का मुंह देखकर कह रही है, यशोदा तेरा मुंह पीला पीला हो रहा है, साफ पता लग रहा है तेरे यहाँ पर लाला ही होगा, बालक ही होगा। यशोदा जी तो शर्मा जाए। और ठीक इसी घड़ी में जहां पर मथुरा में देवकी वसुदेव जी के सामने कृष्ण प्रकट हुए, ठीक एग्जैक्टली वही मुहूर्त, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, हर्ष नामक योग, अर्धरात्रि के समय में गोकुल में नंद यशोदा जी के साथ आगे यशोदा जी को जुड़वा संतान हुई, एक बालक और एक बालिका। बालिका हुई अनुजा, मतलब योग माया जी, और बालक हुए कृष्ण। क्या? वेट अ मिनट, अभी आपने कहा मथुरा में कृष्ण हुए, अब बोले गोकुल में हुए, क्या कहना चाह रहे हो? डबल रोल है क्या? हाँ, इस स्टोरी में डबल रोल है। एक मथुरा में देवकी जी के कृष्ण हैं और एक गोकुल में यशोदा जी के कृष्ण हैं।
ये तो कभी सुना नहीं। मैं भी जब घर में रहता था मैंने भी कभी नहीं सुना, लेकिन जब वृंदावन में बड़े बड़े संतों के चरणों में बैठोगे और भागवत जी को पढ़ेंगे तब पता लगेगा हाँ यही बात सच है। गोकुल में जन्म हुआ और मथुरा में प्रकट हुआ, क्योंकि जब बालक का जन्म होता है उसके शरीर में कपड़े होते हैं, कान में कुंडल होता है, अस्त्र शस्त्र होते हैं, ऐसे थोड़ा जन्म होता है, वो प्रकट होता है। जन्म तो कैसा होता है, नंगा बच्चा जन्म लेता है, और कृष्ण का ऐसे ही जन्म हुआ, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, और उनकी बहन योग माया जी दोनों जुड़वा संतान का जन्म हुआ। अब आ जाओ मथुरा में आ जाओ। देवकी वसुदेव जी कह रहे हैं देवकी अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, भय लग रहा है कि कंस मुझको भी मारेगा, मुझको नहीं मार सकता वो। देवकी कहने लगी इतने बड़े खड़े हो गए, प्रेम कैसे करूं, दूध कैसे पिलाऊं? अच्छा तो ठीक है देवकी, मैं छोटा सा बच्चा बन जाता हूं और वसुदेव जी आप मुझको गोकुल में छोड़ाओ। तो कैसे छोड़ाऊं? हाथ में देखो बेड़ियां बंधी हैं, पहरेदार जाग रहे हैं, ताले लग रहे हैं, बाहर आंधी तूफान चल रहा है, जमुना उफान भर रही है। भगवान ने कहा मैं सारी व्यवस्था करूंगा, चलने की तैयारी करो। बोले हम तो तैयार हैं। ये बेड़ियां बंधी, इसका क्या होगा? खटक करके बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, और कृष्ण बड़े 16 वर्ष के बालक से छोटे से नन्हे शिशु बन गए, टोकरी में धारण करके जो जमुना जी के मार्ग से गए। क्यों मेन रोड से जाना चाहिए था? नहीं, कंस का कोई देख लेगा तो, इसलिए जमुना जी में तो कोई नहीं देखेगा। जमुना जी में जो उतरे, और आज जमुना जी ने सोच लिया कसम खा ली भगवान के चरणों को छू कर ही रहूंगी, फिर पता नहीं चरण मिले ना मिले। तो जमुना जी भरे जा रही है, यहाँ तक जल आ गया। वसुदेव जी घबराए नहीं, बोलते जो यहाँ तक ले आया वही आगे ले जाएगा। एक कहावत है ना, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोई। जो नंदलाल की इच्छा, बात तो वही होनी है। हम कितनी भी प्लानिंग कर ले कुछ नहीं, जो कन्हैया की इच्छा वही होना है। तो वसुदेव जी घबरा नहीं रहे कि अब तो बाढ़ आ गई। जैसे आगे गए तो टोकरी से कन्हैया ने ही अपने चरणों को बाहर निकाला, और जमुना जी ने जो चरण छुए, जमुना जी ने सोचा हाँ अब मैं पूरा मार्ग दे देती हूँ। पानी के अंदर पूरा रास्ता बन गया, क्योंकि जमुना जी सोच रही है फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन। यदि कन्हैया सोचेंगे तुम तो सब समय भरी रहती है, तेरे पास कभी नहीं आऊंगा, तो जमुना जी ने सोचा कल को कन्हैया मेरे तट पर आकर रास करेंगे, सखों के साथ खेलेंगे, मैं ये भी बता दूं कि मैं मार्ग भी दे सकती हूँ। इसने पूरा मार्ग दे दिया, और वसुदेव जी सिर पर उस बालक को लेकर जैसे ही चलते चलते गोकुल में पहुंचे, जैसे गोकुल में पहुंचे, अब यहाँ पर एक सीक्रेट हुआ जिसको ना वसुदेव जी जानते हैं ना यशोदा जी, क्योंकि वो तो बेहोश पड़ी, उनको तो होश ही नहीं। इस बात को बस योग माया जी जानती है, बस वही ये सब करा रही है। पूरा खेल, पूरे भगवान की लीला का रिमोट योग माया जी के हाथ में होता है। और उन्होंने क्या कराया, वसुदेव जी के सिर पे जो बालक, वो बालक और जो यशोदा जी ने बालक को जन्म दिया, वो दोनों बालक हो गए एक। ये बात ना वसुदेव जी जानते हैं ना यशोदा जी जान रही है। वो बालक दोनों जुड़ गए, एक हो गए, और वसुदेव जी उस कन्या को टोकरी में उठाकर मथुरा में ले आए। आप बोलेंगे ये तो पहली बार सुना, अपने मन से बोलते हो या कोई एविडेंस है? जिसको एविडेंस चाहिए भागवत में से 5-7 एविडेंस में बता सकता हूं। श्लोक जो ब्रह्मा जी ने कहे, सुखदेव जी ने कहा, देवी ने कहा, ये सारे श्लोक इसको प्रूफ करते हैं। जो भागवत पढ़ते हैं, मेरे से अगर पूछना हो तो आ जाना, मैं आपको एविडेंस दिखा दूंगा। एनीवे,
वसुदेव जिस बालिका को लेकर मथुरा में आए, शोर मच गया, देवकी की 8वीं संतान एक कन्या हुई है। जैसी कंस आया, देवकी के हाथ से उस बालिका को पकड़ा, देवकी ने कहा इसको तो छोड़ दे, तो बेटी है। कंस ने कहा यही मेरा मैरी है, बालकों के बालिका, ये 8वीं संतान है। और जैसे ही पकड़ने लगा, वो देवी तो अष्टभुज धारण करके श्री दुर्गा स्वरूप खड़ी हो गई। जब तक गोकुल में थी तो योग माया जी थी, और जब मथुरा में आई तो महामाया श्री दुर्गा जी। और कंस के सिर पर लात मारकर कह दिया, कंस तेरे को मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है, तू मेरे को क्या मारेगा। कंस सोचने लगा, जिस कंकाली देवी, मथुरा में कंकाली देवी है जिसकी कंस पूजा करता था, जिस देवी की मैंने सारा जीवन पूजा की, आज उसने सिर पर लात मारकर कह दिया, इसका मतलब देवी रुष्ट हो गई है। तो कंस तो डरा हुआ है, उसको डरने दो। और गोकुल में यशोदा जी को तो होश ही नहीं, जुड़वा संतान को जन्म दिया। तो नंद जी की एक बहन है जिनका नाम है सुनंद, कृष्ण की बुआ लगती है। वो भीतर में आई तो देखा भाभी ने एक बड़े सुंदर बालक को जन्म भी दे दिया, ना आवाज आई, ना शोर हुआ, ना कुछ। बालक को देखा, ऐसा लगा जैसे एक सरोवर में नील कमल खिल जाता है। एक कमल जो नीले रंग का, ऐसा सुंदर बालक पकड़कर सुनंद बुआ शोर मचाती मचाती बाहर आकर नंद जी को बधाई दे रही है। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा भाभी ने बड़े सुंदर एक बालक को जन्म दिया है। नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आहा, उसी समय नंद बाबा ने दान देना शुरू कर दिया। जो भी उनके सामने आए, कान के हीरे के कुंडल ऐसे दे दिए, हाथ में कड़वा ऐसे दान दे रहे हैं। बस जो जो मांग रहा है नंद बाबा उसको बस देते जा रहे हैं। इसको कहा गया नंद उत्सव, जो हम कल सुनेंगे। क्योंकि नंद के घर क्या भयो? नहीं, अभी तो बोला कृष्ण भयो। नंद के यहाँ तो कृष्ण का जन्म हुआ, आनंद का थोड़ा हुआ। लेकिन गाते क्या है? नंद के घर। इससे पता लगता है कृष्ण और आनंद ये दो चीज नहीं, ये एक ही है। जो कृष्ण के साथ रहेगा वो आनंद में ही रहेगा। और कैसे रहेंगे? भागवत जी कृष्ण है, नाम कृष्ण है। आप इन दोनों के साथ रहो तो आनंद में ही रहोगे। तो क्या होगा? नंद के घर आनंद भयो, और हाथी घोड़ा पाल की। एक मिनट, आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल जैसे आज कृष्ण जन्म सुना, कल कन्हैया की चोरी लीला को सुने। भगवान भी चोरी करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर और बड़ी इंटरेस्टिंग और हंसाने वाली लीला है। कल हम सुनेंगे भगवान की बाल लीला, और फिर राधा जी की जन्म कथा को हम लोग कल सुनेंगे। ये कल ट्यूसडे का हमारे कार्यक्रम है। और वेडनेसडे को बहुत ही शुभ दिन है। पूरे साल में 2 ऐसे दिन होते हैं जिसमें आपको कोई चार्ट, किसी एस्ट्रोलॉजर को जरूरत नहीं है देखने की। टू स्टार्ट एनी न्यू वेंचर, शादी करना हो, ट्रैवलिंग करना हो। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो बोल रहा था बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, ट्रैवल करना हो, वेडिंग करना हो, डिवोर्स करना हो। जस्ट मजाक कर रहा था, वो तो ये नहीं करना। तो जो भी है, वेडनेसडे इस अक्षय तृतीया बहुत शुभ दिन है, बहुत ज्यादा शुभ दिन है उस दिन तो। और वो भी हमारे भागवत के बीच में आ रहा है ना, अक्षय तृतीया का दिन। उस दिन आप सब लोग, हमारी कथा तो शाम को होगी, लेकिन सुबह अपने घर में भगवान का पूजन, भगवान का नाम उस दिन जो किया जाता है उसका फल 1 मिलियन ज्यादा होता है। इसलिए इंडिया में तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। और वृंदावन के मंदिरों में भगवान को चंदन लगता है। मैं उस दिन कथा सुनाऊंगा वेडनेसडे को। चरणों से लेकर मस्तक तक चंदन ही चंदन लगता है। उस दिन कपड़े नहीं पहनाए जाते। उसका क्या सीक्रेट है, सिग्निफिकेंस है, मैं वेडनेसडे को बताऊंगा।
और वो दिन दान का दिन भी माना जाता है ना। लेकिन हमको, मैं कौन से दान की बात बोल रहा हूँ? आप लोग ये 2 कान दे रहे हो ना, ये सबसे बड़ा दान है। उस दिन जो भी एक्टिविटी की जाएगी वो मल्टीपल हो जाएगी, 1 मिलियन टाइम्स। अगर $1 दोगे तो $1 मिलियन। 2 कान दोगे तो इसी 2 कानों में 1 मिलियन कानों की शक्ति आ जाएगी भगवान की कथा सुनने। कीर्तन करेंगे, नाम करेंगे, जो भी कुछ करेंगे उसका रिजल्ट बहुत 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 ज्यादा होता है। तो इसलिए हमारी भागवत के बीच में वो दिन आ रहा है, वो वेंसडे को मैं सुनाऊंगा। कल राधा अष्टमी, राधा जी की जन्म कथा सुनेंगे। और कल का ड्रेसिंग कोड माताएं बता रही हैं। राधा जी कौन सी फेवरेट? ब्लू कलर पहनती है, तो कल का ड्रेसिंग कोड क्या होगा? ब्लू होगा। ये हमारी कथा है गौगोत्री माधव की। ओ यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग, वृंदावन में राधा जी का जो जन्म, राधाष्टमी का जन्म होता है ना, वो फेस्टिवल कैसे मनाते हैं जानते हैं? उसको बोलते हैं चाव उत्सव। चाव मतलब जैसे हम कहते हैं ना, बेटे की शादी की बड़े चाव से की, तो राधा जी का जन्म बड़े चाव से किया जाता है। और उसका मतलब क्या होता है? गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं राधा जी के जन्म को? अपने घर से कोई टोकरी सजा कर ले आते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, राइट? कोई नट्स हो गए, कोई स्वीट्स हो गई, कुछ श्रृंगार का सामान, ये सब। अगर कोई ऐसे सजाकर अपने घर से एक छोटी सी बास्केट लाना चाहे, यहाँ पर हम राधा जी को ऑफर करेंगे, सेलिब्रेटिंग राधाष्टमी इन अवर भागवत कथा। दिस इज हाउ वी गोइंग टू डू टुमारो। तो अगर आप लाना चाहेंगे, आप ले आना, हम यहाँ पर भोग लगाएंगे, फिर आपको ही सब बांट दिया जाएगा, जस्ट टू सेलिब्रेट दिस। ठीक है, 1 मिनट कीर्तन। नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, ओ जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी ललकारा, जियो। हमको नहीं मजा आ रहा, क्योंकि गोकुल में कन्हैया का जन्म है और सब चुपचाप बैठे हैं, तो हो ही नहीं सकता। वहां तो सब आनंद में नाचते हैं। सो अगर आप नाच सकते हैं, 2 मिनट खड़े होकर कन्हैया का स्वागत करेंगे, ठीक है? नो शर्माइंग। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी ललकारा, जियो श्याम लाला, जियो।